Yes. Uh, Infant feeding. There are 6 rules of good nutrition we should know. First is continue breastfeeding till 6 months. Second is start weaning at 6 months. Start semi-solids at 6 months. Third is add proteins to the weaning food. Fourth is add fruits and vegetables in the porridge or kanji, whatever we are giving. Fifth is feed 4 times a day. And sixth is continue feeding during illness. These are 6 rules of good nutrition. If all the mothers follow these 6 rules of good nutrition, there will be no malnutrition in this world. But because of lack of information, mothers don't follow these rules. They break the rules. We call it improper feeding technique. That is our diagnosis. Underweight, improper feeding technique. Broken, rule number 4 and 5. जैसा क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर के क्लॉजेस रहते हैं, अंडर दिस क्लॉज गिल्टी, वैसा ब्रोकन रूल नंबर 4, 5, 6. ट्रीटमेंट टीचर रूल नंबर 4, 5, 6. Growth regimes. So knowing these 6 rules of good nutrition and telling them to mothers, teaching them during our routine consultation is part of a pediatrician's duty. Doesn't matter we are giving vaccination. During filling vaccination, you go on telling these rules. You keep on your dialogue with mother while you are preparing the vaccine, while you are filling in the syringe, while you are doing something. Continue your dialogue. You don't have to give special time for nutrition, education. No, special time is not required. During routine times, you can continue these things. All educated, uneducated, rich, poor mothers are interested in their children, interested in well-being of the children. Whatever we tell, if we tell them in colloquial and simple terms, not using medical jargon, then they understand it, and then they understand the importance of it. So our diagnosis should be broken rule number so and so. So we will first look at every rule slightly more in detail. Continue breastfeeding till 6 months. Initiation of breastfeeding. I generally, whenever take history, a newborn comes to me, I ask them the question,
Where was the delivery? Where was she delivered? Normal or caesar? Full term or preterm? Did child cry immediately after birth? Mention it on your record. When was the first feed given? Time. We know the answers are very different. Sometimes 4 days, 5 days, 3 days. No description, give me time. And many times nowadays, when child is delivered in government hospital, baby is fed within 1 hour. When child is delivered in private hospital, 3rd, 4th, 5th day. Gynecologists are not sensitized to breast crawl and early breastfeeding. Once the baby cries and there is no bleeding, mother is settled. बाल बाळंतीण सूक्ष्म दोनों अच्छे हैं. गायनाकोलॉजिस्ट का उस केस का कंसल्टेशन ही निकल जाता है. He or she is busy in other cases. They are dealing with lives. They are under pressure. They don't want extra headache. दूध नहीं है, पाउडर का लिख के देता हूँ, लाओ चालू करो. लैक्टोडेक्स लिख दिया, चालू कर दिया. सो प्रीलैक्टियल फीड is wrongly given because doctors don't have time. Pediatrician is called once the child cries and child is stabilized. Pediatrician is not involved in child care till the child is discharged and mother goes to pediatrician again. So lactation management is not done by anybody. Even pediatrician is there. Pediatrician is a busy creature. A lot of OPD, lot of indoor, somebody is dying, somebody is gasping. There are lactation management counselors. If there is nobody, somebody in the family should be trained as a lactation management counselor. Breastfeeding Network of India, BPNI, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्टेट ब्रांचेस है. ऐसा भारत में स्टेट नहीं जिसमें बीपीएनआई की ब्रांच नहीं. And they organize lactation management counselor courses, trainings. Non-medical person can go and get trained. पीडियाट्रिशियन की वाइफ, बीवी, बच्चा, माँ जा सकती है, ट्रेनिंग होकर आ सकती है. कोई रिश्तेदार को भेज सकते हैं, जाओ ट्रेन होके आओ, जिंदगी भर साथ रहता है. कोई स्टाफ रहता है. हॉस्पिटल स्टाफ रहता है. सपोज अ नर्स और रिसेप्शनिस्ट अच्छा है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट करके ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते. पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को देना पड़ता है. उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे के लाना, और उसका कंसल्टिंग चार्जेस उसको मिला तो चलता है. उसका इनकम बढ़ा सकते हैं, और वो सर्विस देता है, और वो रिसेप्शनिस्ट भी है. रिसेप्शनिस्ट का ड्यूटी करता है, उस टाइम में लैक्टेशन मैनेजमेंट काउंसलिंग कर सकता है. असिस्टेंट डॉक्टर्स रहते हैं, उनको भेज सकते हैं. नर्सेज रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, कोई भी रहता है. रिश्तेदार कोई भी गांव में रहते हैं,
तो उनको भी मतलब क्वालिफाइड रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, हाउसवाइफ रहते हैं, उनको बहुत बिजी नहीं रहना पड़ता। लेकिन ऑन कॉल लैक्टेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके बुलाया तो वो बहुत खुशी से आते हैं, कंसल्टिंग करके जाते हैं। तो ये स्पेशलिटी का जॉब है और वो स्पेशलिस्ट रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू फीडिंग अप टू 2 years, इट इज चाइल्ड्स बर्थ राइट। लोकमान्य टिळक ने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। ये लोकमान्य टिळक का सेंटेंस। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। वैसा 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग मिलना ये बच्चे का बर्थ राइट है, मां की मर्जी नहीं है। 2 साल के बाद में कंटिन्यू किया तो मां की मर्जी है, लेकिन बच्चे का तो फायदा ही है। आफ्टर 2 years continued feeding doesn't provide lot of nutrition but provides lot of immunity. It prevents allergies, it prevents asthma, it prevents adult onset diseases, myocardial infarction, obesity, hypertension, and etc. etc. It is to provide immunity. Whatever baby gets provides immunity. So, continued breastfeeding beyond 2 years is also recommended. There should be a principle of demand feeding. बेबी ने मांगा तो दिया, हर 3 घंटे के बाद पिलाओ। घड़ी से बच्चा नहीं मैच करना है, बच्चे से घड़ी मैच करना है। इंपॉर्टेंट घड़ी नहीं है, इंपॉर्टेंट बच्चा है। जब मांगेगा तब पिलाना, नहीं मांगा तो नहीं पिलाना। भूख लगी तो मांगेगा ही। तो डिमांड फीडिंग ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा रहता है। Telling them, making them aware not to start cow's milk or puppy's milk or top milk when it is not required. Society and family are in hurry to start top. बच्चा रोया तो दूध कम हो गया होगा, चालू कर दो ऊपर का। पाउडर का डब्बा लाओ, बोतल लाओ, लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं, डब्बा लेके आते हैं, बोतल, और क्या चाहिए। ये खरीदी करने की तुम्हारी ताकत है कि नहीं इसका सवाल नहीं है, बच्चे को जरूरत है कि नहीं इसका सवाल है। लैक्टेशन फेल्योर और इनएडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क का डायग्नोसिस माँ ने, दादी माँ ने नहीं करना है, डॉक्टर ने करना है। Passing urine more than 6 times in a day when baby is on exclusive breastfeeding is a proof that child is getting adequate water and adequate milk. Good growth is a proof that child is getting adequate diet, adequate breast milk. So adequacy of breast milk is to be diagnosed by a pediatrician, a doctor, not by family. ये उनको पहले से ही बता देना। दूध आया ही नहीं 3 दिन के बाद आया, फिर हमने चालू कर दिया, तब तक के लिए ऊपर दिया प्री लैक्टियल फीड्स। ब्रेस्ट इज नॉट अ स्टोरेज टैंक। ऐसी सिस्टम नहीं है कि ऊपर वाला आके एक बोतल दूध वहां पे रख के जाता है दरवाजे पे
और सवेरे दरवाजा खोला तो वहां पे बोतल मिलती है। इट्स नॉट अ स्टोरेज टैंक, इट इज अ टैप। टैप खोलोगे तो बकेट भर पानी आएगा, 10 बकेट पानी आएगा, और टैप नहीं खोलोगे तो 0 पानी आएगा। टैप में कितना पानी है? टैप में कुछ भी पानी नहीं है। टैप खोलोगे तो ऊपर के टंकी से पानी आता है, और ये टंकी कहाँ है? पिट्यूटरी में है। जब बच्चा सक करता है, निपल का स्टिमुलेशन ब्रेन में जाता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स आता है। इट इज लाइक अ इलेक्ट्रिक बटन। वो बटन दबाया तो ट्यूबलाइट लगेगी, बटन दबाए नहीं तो ट्यूबलाइट लगेगी नहीं। ऐसी सिस्टम नहीं है कि दूध आया है और वो बच्चे को पी के खत्म किया है उसने। बच्चा जब पीने लगता है, सक करने लगता है, तब दूध निर्माण होता है। जब तक बच्चा सक करते रहता है तब तक दूध आते ही रहता है। ट्विंस है, एक ने खत्म कर दिया, दूसरे को लगाया तो आते रहेगा। सक करना बंद कर दिया तो लेट डाउन रिफ्लेक्स बंद हो जाएगा। ये मां को समझना चाहिए। दूध आया ही नहीं करके पिलाया ही नहीं, ऊपर का पिलाया। भगवान आके खड़ा नहीं हुआ मेरे सामने तो मैं क्यों नमस्कार करूं? वैसा दूध भगवान जैसा है, तू नमस्कार करो दिल से तो आके खड़ा रहता है। तुम नमस्कार नहीं करते तो भगवान बोलता है क्यों जाऊं मैं वहां पे, ये तो मेरे को नमस्कार नहीं कर रही, मैं उसके घर में जाऊंगा जो मेरे को नमस्कार करेगी। ऊपर वाले जैसा है ब्रेस्ट मिल्क। तो पहले नमस्कार करना है तो ऊपर वाला आके खड़ा रहता है। पहले सक करना है तो दूध आता है। लोग बोलते हैं दूध नहीं था करके ऊपर का चालू किया, हम बोलते हैं ऊपर का चालू किया करके दूध नहीं है, दूध गया। सो फ्रीक्वेंट सकिंग, फ्रीक्वेंट एम्प्टिंग, एडिक्वेट डाइट एंड काम क्वाइट माइंड, ये 4 चीजें लैक्टोगोग है। मां का दूध जाना ये कोई बीमारी नहीं जो उससे दवा इंजेक्शन देके दूध बढ़ा सकेगी करके। जो कोई भी देता है, शतावरी देता है, पेरिनॉम देता है, डॉम्पेरिडॉन देता है, इट्स नॉट अ डिसीज टू बी क्योर्ड बाय ड्रग्स। सब करने को बोलो, बच्चा जिसको चूसेगा उसको दूध आएगा, माँ को चूसेगा तो माँ को आएगा, बोतल को चूसेगा तो बोतल को आएगा। निपल शील्ड, वो निपल छोटा है, निपल बड़ा है, वो सब करने को नहीं जा रहे। निपल लेके 2 रुपए का निपल लेके आता है कोई भी, ला बोले तो लोगों को क्या, घर के पुरुष लोगों को वो राह देखते बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। फट से मोटरसाइकिल किक मारेंगे, जाएंगे, 500 रुपए का पेट्रोल खर्चा करके 2 रुपए का निपल लाके सामने रखेंगे। बच्चे पे प्यार है ना, लेकिन वो निपल से सेंसेशन कहा जाता है, दैट इज अगेंस्ट नेचर। अगेंस्ट नेचर कुछ किया तो दूध जाता है, दूध जाता है ये सच है, लेकिन वो कॉज है कि इफेक्ट है ये सब। हम कॉज बोलते हैं, नॉट सकिंग इज द कॉज, नॉट एम्प्टिंग इज द कॉज, इनएडिक्वेट डाइट, फूड फैट्स इज द कॉज। नॉट एम्प्टिंग किया तो ऊपर नेचर को लगता है जरूरत नहीं है, बंद कर दो। उसमें इनहिबिन करके हार्मोन रहता है, वो इनहिबिट करता है। तो एडिक्वेट, सो लैक्टेशन इज फर्स्ट गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल लीव दैट टॉपिक हियर बिकॉज पूरा लेक्चर उसमें जाएगा। सेकंड इज
6वें महीने में कांजी, 9वें महीने में खिचड़ी, फर्स्ट बर्थडे को अपने थाली में खाना। ये 3 स्टेप माँ ने गलत नहीं करना है। अप टू फर्स्ट ईयर अवर डाइट एडवाइस हैज अ एक्सपायरी डेट ऑफ 3 months। आज जो मैं सलाह दे रहा हूं वो सिर्फ 3 months एप्लीकेबल है। 3 महीने के बाद मेरी सलाह बदलेगी, ये पहले बता के रखना है, अवेयर करके रखना है। नहीं तो वो कांजी चालू है, 2-2, 4-4 साल तक कांजी चालू रहती, तो मुझे बताना पड़ता है तुम ऐसा करो, बड़ा होने के बाद जब बहू लाओगी उसको बोलना कांजी बना के देना पड़ेगा। हमारा बच्चा खाता नहीं, सिर्फ कांजी खाता है, उसको बड़ा होने ही नहीं देना, कांजी खिलाते रहो। 2-2, 4-4 साल तक कांजी खिलाते रहते लोग। उनको ये कोई वेल इन्फॉर्म पेडियाट्रिशियन को जाके पूछते ही नहीं कोई। लेकिन अपना तो काम है बताना, जो अपने कांटेक्ट में आएगा उसको बताना, उसको सिखाना। वो बाकी लोगों को सिखाते हैं एकदम। तो 6 months सेमी सॉलिड वीनिंग फूड कैन नॉट बी लिक्विड, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फूड, पूरक आहार है। इट इज नॉट रिप्लेसमेंट टू ब्रेस्ट फीडिंग। वीनिंग डजंट मीन रिप्लेसमेंट टू ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। It has to be semi-solid. स्टैपल डाइट, राइस दाल घर में बना सकते हैं। इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट सच है, इट प्रोटेक्ट्स लैक्टेशन। मिश्रण चाहिए। हम एडल्ट दाल चावल रोटी सब्जी चटनी कोशिम्बीर उसमें अंडी मटन चिकन सब खाते हैं, पेट में जाके मिश्रण होता है। मिश्रण मिला इसका मतलब बैलेंस डाइट हो गया। मिश्रण मिला करके हमारी तबीयत अच्छी रहती। हम सिर्फ दाल चावल खाएंगे, दाल का पानी चावल का पानी नाचनी सत्व खाएंगे तो अपनी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। लोग नाचनी सत्व देते हैं, नाचनी में कैल्शियम है, अच्छा है, नाचनी मिलेट है, अच्छा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अच्छा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ नाचनी सत्व अच्छा नहीं है। सिंगल आइटम इज नेवर न्यूट्रिशियस। हाँ, दाल चावल खिचड़ी में 1 चम्मच नाचनी डालो, क्वालिटी बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ नाचनी सत्व देने वाले जो फैमिली रहती उनको मैं बोलता हूँ तुमने आज क्या खाया? वांग्याची भाजी, भाकरी, लसणाची चटणी। बच्चे को क्या दिया? नाचनी सत्व। क्यों दिया? वो पौष्टिक रहता है। फिर तुमको क्यों नहीं पौष्टिक? तुम आज ऐसा करो, तुम्हारा 1 साल का बच्चा हो गया अभी, अब तुम उसको वांग्याची भाजी, भाकरी, लसणाची चटनी खायला डाला और तुम नाचनी सत्व खाओ आज से। पूरी फैमिली नाचनी सत्व की पार्टी करो। एडल्ट हमारे बच्चे को ही क्यों पौष्टिक आहार, तुमको क्यों नहीं चाहिए पौष्टिक आहार? तुम खाओगे क्या नाचनी सत्व? नहीं 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 नहीं, हमने खाया, हमने। फिर मेरे बच्चे क्यों? गलत है। सिंगल आइटम इज नॉट न्यूट्रिशियस, मिश्रण चाहिए। दाल चावल बेसिक स्टैपल डाइट है। यू हैव टू ऐड प्रोटीन्स टू द डाइट। Proteins are body's building blocks. Proteins are required for growth. Proteins are required for healing. Burns के बच्चों को प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है।
कोई भी बीमारी से अच्छा होने के बाद प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना पड़ता है। प्रोटीन क्वालिटी का भी सवाल आता है। वेजिटेरियन प्रोटीन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में फर्क समझना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सब अमाइनो एसिड्स एट ए टाइम मिलते हैं। उसके लिए तो अंडे को रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं। कंपेयर टू अंडा ये कितना अच्छा है, कंपेयर टू अंडा वो कितना अच्छा है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बहुत सच है, कितनी अच्छी है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट होगा तो ज़्यादा प्रोटीन क्वालिटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती। वेजिटेरियन डाइट रहे तो चलता है, नॉन वेजिटेरियन इसेंशियल नहीं है। वेजिटेरियन डाइट पे बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट और बैलेंस्ड फूड डाइट हो सकता है, लेकिन उसके लिए अवेयर रहना चाहिए। जैसा गोट्स मिल्क, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ज्वार में कुछ अमाइनो एसिड्स है, कुछ नहीं है। राइस में कुछ अमाइनो एसिड्स है, कुछ नहीं है। मूंगफली में कुछ अमाइनो एसिड्स है, कुछ नहीं है। There is a principle of limiting amino acids. If all the amino acids are present at a time in the diet, the absorption of all amino acids are good. If there is deficiency of some amino acid in the diet, absorption of all amino acids is inadequate. इसलिए वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का मिश्रण बनाना बहुत जरूरी रहता है, फिर वो बैलेंस डाइट होता है, फिर सब अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो 2-3 धान्य ग्रेन्स, 2-3 डाळी दाल्स, स्प्राउट्स, सबका मिश्रण चाहिए। मिश्रण पेट में गया तो क्वालिटी बढ़ती है। भाजनी, धपाटी, थालीपीठ, चकली, कड़बोड़ी, मराठी में बात कर रहा हूँ, लेकिन सबको धपाटी सबको समझता है। ये सत्तू का पीठ, ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो बैलेंस डाइट बनाती है। और इसलिए मिश्रण करना प्रोटीन के बारे में, ऐड प्रोटीन टू द डाइट। लोग प्रोटीन नहीं डालते और ग्रोथ कम होता है। नेक्स्ट इज ऐड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू द कांजी। They give vitamins, minerals and micronutrients. Vitamins, minerals and micronutrients are called as protective food. They protect from illness. दाव से लेके हाथ से खाते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट, चम्मच से लेते और चिमूट से खाते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट। चटनी, अचार, फल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ड्राई फ्रूट माइक्रोन्यूट्रिएंट, चिमूट से खाते हैं। राइस, दाल, रोटी हाथ से खाते हैं, चिमूट से खाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट। फार्मर्स अपने प्लांट्स को परचेज करके करके माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं मिट्टी में, फिर वो पेड़ अच्छे आते हैं, हेल्दी रहते हैं।
बच्चों को कोई नहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट खिलाता। वो कुर्टे हुए द्वार रहते हैं, स्टंटेड रहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड नहीं मिलता उनको। तो एक बार के कांजी में प्रोटीन डालो, एक बार के कांजी में सब्जी डालो, एक टाइम के कांजी में फल डालो। हर रोज बदलना चाहिए, सब्जी बदलना चाहिए। एक टाइम के कांजी में ड्राई फ्रूट पाउडर डालो या तो चटनी डालो, तिळाची चटणी, खोबऱ्याची चटणी, कारळ्याची चटणी, जवसाची चटनी। चटनी सब खाते हैं टेस्ट के लिए, मैं चटनी खाता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, क्योंकि उसमें ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। चटनी चिमट भर लगती है। चटनी तीखा बनाना चाहिए ऐसा किसने बताया? ऑयल सीड्स का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया कांजी में, तो वहां पे क्या तीखा है? राइस में क्या तीखा है? दाल में क्या तीखा है? रोटी में क्या तीखा है? कुछ नहीं तीखा। अगर इसमें 1 चम्मच कटोरी, एक बाउल में 1 चम्मच सब्जी डालोगे तो उसको टेस्ट आएगा, तीखा भी नहीं रहेगा। और घर की सब्जी रोज बदलती है, सवेरे शाम बदलती है। फल बदलना चाहिए। तो मिश्रण और बदल, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वही वो खाना 2-2 साल तक खिलाते रहते बच्चों को, फेडअप हो जाते बच्चे, क्रैंकी हो जाते हैं। एडल्ट को 2 टाइम अलग अलग सब्जी लगती है, टेस्ट अलग अलग, वही वो खाना नहीं चलता एडल्ट को। बच्चे बेचारे मुके हैं, यानी बात नहीं कर सकते, सिर्फ रोना उनको मालूम है, कम्युनिकेशन का माध्यम इन्फेंट्स को। तो ये चेंज चाहिए, मिश्रण चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इम्पॉर्टेंट है। वो स्टेप नहीं किया तो ग्रोथ अच्छी नहीं होती, रिकरेंट इलनेस होते हैं, मालन्यूट्रिशन होता है। गिव कांजी 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, दैट इज द रूल। ये कैसे डिसाइड हुआ? बच्चे की स्टमक कैपेसिटी, जितने किलो वजन उतने आउंस एट अ टाइम। 3 किलो बच्चे की 3 आउंस 90 ml, 5 किलो बच्चे की 5 आउंस 150 ml, 1 आउंस is 30 ml। स्टमक कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। बच्चों की नीड के हिसाब से स्टमक कैपेसिटी बहुत कम है, एडल्ट के नीड के हिसाब से स्टमक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए बच्चों को स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग लगता है। एडल्ट 2 बार खाना खाते हैं, इसका मतलब बच्चों ने 2 बार खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को कम से कम 4 टाइम खाना चाहिए, 8, 12, 4, 8, सवेरे 8, दोपहर को 12, शाम को 4, रात को 8। बाकी टाइम पे माँ का दूध। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकी टाइम पे माँ का दूध, ऊपर का दूध नहीं पिलाना। ऊपर का दूध ये वीनिंग फूड नहीं है। रिप्लेसिंग काउज मिल्क इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क is not weaning, not recommended. It has to be semi-solid, no liquids other than breast milk. पानी पिला सकते हैं आफ्टर वीनिंग स्टार्ट्स। कितना पानी पिलाना है? जितना बच्चा बोलेगा बस तो बस करता है। हर फीड के बाद में पानी पिलाना है। बच्चे को जरूरत है तो पिएगा, नहीं है तो मुंह फेर लेगा।
कितना क्वांटिटी खिलाना है बच्चे को वीनिंग फूड का, बच्चे ने डिसाइड करना है। हमने देना है, उसकी जरूरत होगी तो खाएगा, उसने मुंह फिरा लिया है, फेर लिया है, नहीं रुकना है, जबरदस्ती नहीं करना। तो गिविंग 4 टाइम्स अ डे, इसको साइंटिफिक रीजंस है। कंटिन्यू फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस, ये छठवां और आखिरी रूल ऑफ गुड न्यूट्रिशन है। कस्टम्स बिलीव्स रहते हैं, ये खाया करके वो हो गया, वो खाया करके वो हो गया, फलाना फलाना फलाना। डॉक्टर लोग भी इनकरेज करते हैं, जामुन खाया होगा, आंबा खाया होगा। अरे आंबे के दिन में आंबा नहीं खाएगा तो क्या करेगा? हर बीमारी को डाइट को कोसने की क्या जरूरत है? कल्प्रिट बनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल गलत है। खाने से कोई बीमार नहीं होता, नहीं खाने से बीमार होता है। फ्रूट के बारे में तो बहुत ही कंफ्यूजन। वो केला खाया तो सर्दी हो ही गया। मैं बोलता हूँ ऐसा आदमी लाके मेरे सामने खड़ा रख करो, इसने केला खाया कि इसको सर्दी, हर टाइम होना चाहिए। अगर एलर्जी है तो हर बार केला खाने के बाद सर्दी होना चाहिए। कभी तो भी केला खाया, कभी तो भी सर्दी हुआ, दही खाया करके खांसी हो गई। अरे दही तो कभी भी खाते हैं, उससे क्यों खांसी होने की जरूरत है? आंबट चिंबट तेलकट तुपकट बंद, सुना होगा ये सेंटेंस तुमने महाराष्ट्र में आने के बाद। कौन सी किताब में लिखा है ये? कहां से आए? ये समाज ने हमें दिया और हम समाज को देते हैं। अगर फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया तो पीपल सेटिस्फाइड नहीं होते हो। डाइट के बारे में कुछ बताया नहीं उसने, आंबट चिंबट तेलकट टुक्कट बंद बताया नहीं, वो कुछ बराबर नहीं डॉक्टर, बराबर नहीं देते। दैट इज प्लेइंग टू द गैलरी। हमारा काम प्लेइंग टू द गैलरी नहीं है, हमारा काम न्यूट्रिशन साइंस माँ को सिखाना है। वीनिंग पीरियड में जब हमारे पास किसी भी कारण के लिए माइनर एलिमेंट या वैक्सीनेशन के लिए आते तो ये बताना है, ये लोग पूछते नहीं आके, हमें बताना पड़ता है। वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। सो कंटिन्यू फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस। बच्चे को बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। रिक्वायरमेंट बढ़ गई और बच्चे की भूख कम होगी। बीमारी में बच्चे की भूख कम हो जाती है। माइनर एलिमेंट्स में भूख कम होती है, बच्चे नहीं खाना खाते। रिक्वायरमेंट ज्यादा, पुरोठा कम। कस्टम रिलीफ बंद करो, ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ, वह मत खिलाओ, फूड फैट्स, तो इनएडिक्वेट इंटेक हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है। Weight loss during illness is a very, very, very important cause of malnutrition in our community. बुखार, सर्दी, खांसी, लूज मोशन, वॉमिटिंग हो गया, सर्दी खांसी अच्छी हो गई, बुखार अच्छा हो गया, इसका मतलब बीमारी अच्छी हुई, बच्चा नहीं अच्छा हुआ। बीमारी अच्छी होना और बच्चा अच्छा होना में डिफरेंस है। वेट लॉस ड्यूरिंग इलनेस, रिगेन होने के बाद बच्चा अच्छा हुआ। बीमारी में उतरा हुआ वजन फिर से नॉर्मल हो गया तो बच्चा अच्छा हुआ। तब तक बीमारी अच्छी हुई लेकिन बच्चा अच्छा नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है रिकरेंट इलनेसेस में, बच्चा अच्छा होता ही नहीं। बीमारी अच्छी हो जाती है, कन्वालेसेंस में रहता है, इसको कन्वालेसेंस बोलते हैं। बीमारी अच्छी हो गई, असिम्प्टोमेटिक हो गया, लेकिन बच्चा अच्छा नहीं हुआ, दिस इज कन्वालेसेंस। आजारात में उठणे मराठीमध्ये म्हणतो आपण, हिंदी में और कुछ बोलते हो, मुझे मालूम नहीं हिंदी उतना। तो but that is a convalescence period. One extra feed during illness
4 टाइम देते हो 5 टाइम देना, ये उसका ट्रीटमेंट है। कंटिन्यू फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस, 1 एक्स्ट्रा फीड ड्यूरिंग इलनेस। 4 बार देते हो 5 बार देना, बीमारी अच्छी हो गई फिर से 4 बार देना। ये चेंज हमने नहीं सिखाया तो मां नहीं करेगी। उसके बाद में बात का प्रिंसिपल ये है, मैं 1-1 रोटी 2 टाइम खाता हूं, बीमार हो गया तो भूख कम हो गई तो मैंने आधी रोटी 4 टाइम खाना है, तो मेरा दिन का 2 रोटी का कोटा पूरा हो जाएगा और 1 टाइम ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेट लॉस ड्यूरिंग इलनेस। और एक ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं कैलोरी फोर्टिफिकेशन टेक्निक। कैलोरी फोर्टिफिकेशन टेक्निक। सो इंक्रीजिंग calorie content of the diet without increasing quantity is calorie fortification technique। ये हमें पीडियाट्रिशियन को सीख लेना पड़ता है और उसमें 2 तरीके से करते हैं कैलोरी फोर्टिफिकेशन। एड फैट्स टू द डाइट। 4 चम्मच दाल राइस खीर खाया, उसमें 2 चम्मच घी डालोगे तो 10 ग्राम घी जाएगा। 10 ग्राम घी का मतलब 90 कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरीज। जो कुछ खाएगा उसमें घी, तेल या बटर डालना है। ये कैलोरी फोर्टिफिकेशन टेक्निक है। इंक्रीजिंग क्वालिटी कैलोरी कंटेंट विदाउट इंक्रीजिंग क्वांटिटी, ये उसका टेक्निक है। दूसरा एक टेक्निक है एडिंग मिल्क पाउडर टू द डाइट। ये ज्यादा करके लगता है हमें इन्फेक्शन मालन्यूट्रिशन साइकिल में। जब बच्चा जाता है, इन्फेक्शन हो गया, कम खाना खाया, खाना नहीं खिलाया, वेट लॉस हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, इम्यूनिटी कम हो गया, इन्फेक्शन माल न्यूट्रिशन साइकिल कैन बी डायग्नोज फ्रॉम ग्रोथ चार्ट ड्यू टू फाल्टरिंग ग्रोथ कर्व। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 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 जाता है ग्रोथ कर्व। फ्लैट ग्रोथ कर्व or faltering growth curve can indicate us that this child is in infection malnutrition cycle. So treating infection is not enough. Treating malnutrition is also required. Otherwise child doesn't become normal. Recurrent illness होते रहता है। Add milk powder to the diet. मिल्क पाउडर में पानी डाल के मिल्क ड्रिंक करके नहीं पिलाने का। आधी कटोरी राइस दाल खीर खाया तो उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर इज मिल्क विदाउट वाटर। 2 चम्मच पाउडर डाला तो उसका मतलब 60 ml मिल्क, 100 ml मिल्क डाला, पानी निकाल दिया, क्वांटिटी निकाल दिया, क्वालिटी बढ़ाया। तो ये दूसरा टेक्निक है। सो कैलोरी फोर्टिफिकेशन टेक्निक, इंक्रीज फैट कंटेंट इन द डाइट, एड मिल्क पाउडर टू द डाइट। कौन सा भी मिल्क पाउडर चलता है, स्प्रेड राइट चलेगा, रोलर राइट चलेगा, दोनों टाइप के आते हैं। स्प्रेड राइट महंगे रहते हैं, रोलर राइट सस्ते रहते हैं, बहुत सस्ते रहते हैं मिल्क पाउडर। और ये जो वारना, बोविन, अमूल सब कंपनी के मिलते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग मिल्क पाउडर। और वो मेडिकल में नहीं मिलते, वो किराना में मिलते, ग्रोसरी का आइटम, वो मेडिकल का आइटम। मेडिकल किया है तो 400 रुपये 400 ग्राम, और किराना में लिया है तो 30 रुपये किलो। ये फर्क तो उनको बताना है, वो मेडिकल में से नहीं लाना,
किराना में से लाना, ग्रोसरी स्टोर में से लाना, और ऐड मिल्क पाउडर। So these are 6 rules of good nutrition and every mother has to follow. कोई भी रूल मोड़ा तोड़ा बच्चे का नुकसान हो जाएगा। आज यहीं पे रुकते हैं, अगले टाइम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हम लेक्चर करेंगे।